बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5. We'll be doing all the questions. We'll start from first question, which says find the profit on 40,000. So 40,000 is our principal amount. We need to find out the profit. Profit means markup. We need to find out the markup on 40,000 at the rate of 3%. So rate is given as 3%, okay, per year for 4 years. Time is given as 4 years. So these are the things which are given and this we need to find out. अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे. मार्कअप का फार्मूला वो इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी. P इंटू आर इंटू टी. तो इसमें मार्कअप फाइंड करना है. P जो है 40,000 है. R जो है वो 3% है. 3% के लिए हम करेंगे 3/100 और टाइम इज गिवन 4 years. सिंप्लीफाई करते हैं 2 zeros इसके साथ. 400 इंटू 3 इंटू 4 12. 12 zeros are 0, 12 zeros are 0, 12 4s are 48. 4800 is the answer. So मार्कअप जो मिलेगा 4 years के बाद 3% के हिसाब से 40,000 इन्वेस्टमेंट पे या प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 है तो वो होगा 4800. So this is the answer for first question. Now we will move to the second question. Second question says South borrowed 25,000 from bank at the rate of 6% per year for 3 years. Find the markup of the bank. So we need to find out markup. Okay, he borrowed how much? He borrowed 25,000. So this is the principal amount which was borrowed, 25,000 rupees. Okay, and he will be paying 6% per year as the markup for 3 years. T is equal to 3 years. Okay, so we'll simply apply here the formula for markup which we know very well, P into R into T. This is the formula. Okay, just place the values. P is given as 25,000, R is 6%, we will write it 6/100 and T is 3 years. We just simplify 2 zeros, we'll go with this 250 into 6 into 3. 6 zeros are 0, 6 5s are 30. 1500 into 3 is equal to 4500. So he'll be paying 4500 as a markup over a period of 3 years at a rate of 6% if he borrows 25,000 from the bank. Okay, so now we have completed first two questions which were very easy. Now we'll be going for the third one. Question number 3 says find the principal amount invested by Riaz. You need to find out the principal amount. Okay, in a business if he receives a profit of 4,200, profit is markup. Markup he is getting 4,200 in 3 years. Time is given as 3 years and the rate is also given 10% per annum. R is 10% per annum. So we will be apply the formula. Markup is equal to P into R into T. We need to find P. So P will remain this side. So markup, these two R and T, they will come here. They were यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे आके ये हो जाएगा डिवाइड. ठीक है, we place the values 4,200. R कितना है 10%, ऐसे लिखेंगे 10%, 10 और 100 और टाइम कितना है 3. तो अब हम इसको ऐसे करेंगे 4,200, ये 100 ऊपर चला जाएगा इंटू 100 इधर 10 इंटू 3, 0 goes with this. 1,400 into 10, 14,000 is the principal amount. Okay, so we have found out our answer. Now we will be going for the question number 4. Question number 4 says Ajwa invested some amount in a business. He receives a profit of 27,000. So markup he receives is profit 27,000 at the rate of 12%. Rate is given 12% per year and it is for 3 years. We need to find out the original investment. And original investment is principal. Okay, so we will be using the formula. Markup is equal to P into R into T. We need to find principal. Principal will remain this side. So markup over R into T is the
formula. Markup is how much? 27,000. Rate is 12%, 12 over 100, and time is 3. So now 27,000, this 100 will go up. Here we'll have 12 into 3. 3 9s are 27. 3 4s are 12. 3,000. 4 1s are 4. 25. 25 into 3,000 is 75,000. So principal amount is 70,000. So we just applied the formula and plugged in the values, and we got the answer for our principal amount. Now we'll be going for question number 5. Question number 5 says, at what annual rate we need to find out. Percent would 68,000, principal is 68,000. It will become to 9044 in 11 years. Time is given 11 years. Okay, so here we have principal is 68,000. We can find out the markup. Originally it was 68,000, but it increased to 9044. So difference of these two is the markup. 9044 minus 68. Sorry, 6800. 6800. Okay. So we will subtract using the calculator. We see what we get. 9044 minus 6800, it becomes 2244. 2244, this is a markup amount. Okay, we need to find out the rate. So we know that markup is equal to P into R into T. So we need to find the R. R will remain this side. It will be markup over P into T. Markup is how much? 22,244. Principal is 6800. Time is 11 years. Okay, we just simplify. 11 2s are 22. 11 4s are 24. 204 over 6800. So we will divide 204 by 6800. We get 0.03. When we multiply this with 100, so we get 3%. Okay, so 3% is the R. The rate of return is 3%. If he invests 6800 for 11 years, and if he gets 9044, okay, at the end of 11 years, so he will be getting the rate of 3% per annum per year. Okay, so this was question number 5. Now we will be moving to question number 6. Question number 6 says, at what annual rate of profit we need to find out R. Would a sum of 5800, principal is given 5800, will increase to 7105. This 5800 will become 7105 in 3 years. So first we will calculate the markup. It was the original amount, ये अमाउंट इन्वेस्ट की थी और ये इंक्रीज होके इतनी बन गई. जो इंक्रीज आई है ये मार्कअप है 7105 माइनस 5800. तो ये हम कैलकुलेट करते हैं. 7105 माइनस 5800 बन जाता है 1305. 1305 इज द मार्कअप. अब हमें फार्मूला वही लगाएंगे. मार्कअप इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी. हमें आर फाइंड करना है. आर इधर ही रहेगा. ये मार्कअप ओवर पी इंटू टी हो जाएगा. मार्कअप कितना है 1305. प्रिंसिपल कितना है 5800. टाइम कितना है 3 years. 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 5s are 15. 435 को हमने डिवाइड करना है 5800 से. 435 divided by 5800. It becomes 0.075.
0.075 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 7.5%. सो मार्कअप रेट इज 7.5%. ओके, इसमें क्या था कि प्रिंसिपल अमाउंट 5800 था, वो इन्वेस्ट की गई 3 साल के लिए और वो बन गई 7105 इंक्रीज होके। वो जो इंक्रीज थी वो मार्कअप था, हमारे पास मार्कअप है, हमारे पास टाइम है 3 इयर्स, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, तो हमने रेट फाइंड करना था कि वो किस रेट पे वो इंक्रीज होके 7105 हो गई। तो हमने फार्मूला में वैल्यूज़ हमने जो है वो प्लगिंग की, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास 7.5% रेट आ गया, विच वॉज द आंसर. नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 says how long होता है टाइम, कितना साल लगेगा. 15,500 प्रिंसिपल जो है 15,500 have to be invested at a markup rate of 6%. Rate is given 6% per year to gain 2790. हमने जो है वो गेन जो है मार्कअप हमें चाहिए 2790, गेन जो है वो होता है मार्कअप. ठीक है, हम ये फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा कि अगर हम 15,500 इन्वेस्ट करें जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, 6% रेट होगा और मार्कअप हमें जो प्रॉफिट जो गेन है 2790 है. तो टाइम हमने फाइंड करना है. हमारे पास जो फार्मूला है वो है मार्कअप इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी. हमने टी फाइंड करना है, हम करेंगे मार्कअप ओवर पी इंटू आर. मार्कअप कितना है 2790, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 15,500, आर कितना है 6%, ये 6/100 हो जाएगा. इसको हम करेंगे 2790, 100 ऊपर चला जाएगा ओवर 15,500. तो ये हम ऐसे करते हैं कि जो है ये 2 zeros कट कर देते हैं 2 0 से, 2790 को 155 पे डिवाइड करते हैं. सो वी विल गेट द आंसर 2790 डिवाइड बाय 155, वी गेट 18. तो 18 इज द आंसर. ठीक है, तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.5 का. ठीक है, हमने इस पे जो है वो वैल्यूज प्लग की. तो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लॉन्ग वुड 15,500 become have to invest in a markup of 5-6 year 6% per year to gain 2790. Okay, so it was 7th question. ये हमारा जो है थोड़ा सा गलत आ रहा है, हम इसको दोबारा से रिव्यू करते हैं. हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. t इज इक्वल टू मार्कअप कितना है 2790, मार्कअप इज 2790, प्रिंसिपल इज 15,500 and rate is how much? Rate is given 6% per year. ठीक है, तो 6%, तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं 100 को इंटू 100 का लेते हैं, 2 0 से कट जाएंगे. ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने 6 मीटर लगाया. ठीक है, तो ये दिस वाज आवर मिस्टेक. अब हम क्या करेंगे 3 2 6, 3 9 27, 3 3 9 0, देन 2 4 8 9, 465 को हम करेंगे 155 पे डिवाइड. 465 डिवाइड बाय 155, वी गेट 3. ठीक है, तो 3 इज द आंसर. 3 years 3 साल लगेंगे. ठीक है, अगेन हम आपको बताते हैं इट वॉज वेरी सिंपल. प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन 15,500 दी हुई है, 6% रिटर्न मिलेगा और मार्कअप जो हमें गेन चाहिए 2790 है. टाइम कितना टाइम लगेगा उसको जो है इतना गेन लेने में. तो हमने जो है ये वैल्यूज़ वो फार्मूले में हमने लगा दी, कैलकुलेट किया, तो 3 years हमारा आ गया आंसर. ओके, सो नाउ विल बी गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सेज हाउ लॉन्ग अगेन हमने टाइम फाइंड करना है. हाउ लॉन्ग वुड 25,000, प्रिंसिपल इज गिवन एज 25,000 to be deposited in the bank at 12% per year. R is given as 12%. Okay, to receive back 31,000. To receive back
31,000 जो हमें मिलेगी एंड पे, ठीक है, वो मिलेगी 31,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये हमें दिया और ये हमने वापस लिया, हमने मार्कअप कैलकुलेट करना है 31,000 माइनस 25,000, ठीक है। तो 6,000 इज द मार्कअप। अब हम क्या करेंगे कि हम फार्मूला लगाएंगे, मार्कअप इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। तो हमने टाइम फाइंड आउट करना है, यह आ जाएगा मार्कअप ओवर आर इंटू पी इंटू आर। इसमें वैल्यूज रखते हैं, मार्कअप है 6,000, प्रिंसिपल है 25,000, आर है 12%, ये 12 ओवर 100 हो जाएगा, 100 ऊपर ले जाते हैं, 6,000 इंटू 100 ओवर 25,000 इंटू 12, ये 3 जीरो से जाएंगे, 6 1 6 6 2 12, 250 और 25 2, तो ये आ गया t इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। सो ये बताया गया कि प्रिंसिपल अमाउंट इतनी डिपॉजिट की, रिटर्न मिला 12% और रिसीव की बैंक से 31,000, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6,000 मार्कअप आ गया, हमारे पास मार्कअप भी है, रिटर्न भी है, हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न और प्रिंसिपल भी है। तो टाइम हमने फॉलो करना था, हमने जो है फार्मूला में सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास टाइम आ गया 2 ईयर्स, ओके। सो दिस वाज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल बी गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज सहीद इन्वेस्ट 12,000, उसने इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल कितना है 12,000 एट 8.5% पर ईयर प्रॉफिट जो है 8.5, इसको हम 8.5% भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और हाउ मच वुड द अमाउंट बी आफ्टर 2 years एंड 6 months, ठीक है। टाइम जो है वो है 2 years एंड 6 months, इसको हम लिखेंगे 2.6 years, ठीक है। हमें देखना है ये कितनी बन जाएगी। हम क्या करेंगे, हम पहले मार्कअप फाइंड करेंगे, जो मार्कअप आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो वो हमारी अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। वेरी सिंपल, प्रिंसिपल इज गिवन, रेट इज गिवन, टाइम इज गिवन, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द मार्कअप विच इज P into R into T. P is 12,000, R is how much 8.5%, 8.5 over 100, time is given as 2.6, 2 zeros go with this, 120 into 8.5 into 2.6. We will be using the calculator to keep the things easier for us. So we will see what happens. 120 multiplied by 8.5 multiplied by 2.6 becomes 2652. तो 2652 जो है ये मार्कअप है, मार्कअप इज हाउ मच 2652, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच वुड द अमाउंट बी आफ्टर 2 years एंड 6 months। तो अमाउंट जो है वो जो हमें मिले उसको मिलेगी, वो होगी प्रिंसिपल 12,000 प्लस 2652, 14,652, ठीक है। इतने पैसे जो है वो उसको मिलेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 4.5 का। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 14,550 आ रहा है। ये हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या रीज़न है। तो हमारे पास प्रिंसिपल 12,000 है और रेट दिया हुआ है 8.5, 8.5 मीन 8.5%, टाइम जो है 2.6 years, 2 years एंड 6 months, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, 2 years 6 months, ये 2 years है 6 months कैसे होते हैं, 6 months को इसको 12 पे 12 होते हैं साल में महीने, इस पर डिवाइड करते हैं तो 6 1 2, 6 2 12.5, ये 2.5 बना था, ये हमने 2.6 कर दिया, ठीक है। दिस वाज आवर मिस्टेक, 2.5। अब हम इसको लेके चलते हैं ऐसे, इसको हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि गलती करना जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको मैथ आता है वो अपनी गलती को खुद ही कैच कर लेता है और फिर उसको रिवाइज करके उसको करेक्ट कर लेता है, तो उसको कहते हैं कि उसको मैथ आता है, ही नोज हाउ टू कैलकुलेट। इनटू 2.5 2550, ये आएगा 2550। तो इसको जब हम करेंगे ऐड 14,550, ठीक है। 14,550 ये आंसर आ गया, ठीक है।
हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली थी, वो हमने कर ली, करेक्ट कर ली. नाउ वी विल बी गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says Arshad buys an air conditioner at 45,000. जो ओरिजिनल अमाउंट है वो उसने बाय किया 45,000 प्रिंसिपल पे. For leasing it he has to pay 10% डाउन पेमेंट. उसमें डाउन पेमेंट वो पे करता है. ये है प्राइस, ठीक है. डाउन पेमेंट उसने पे कितनी की? एट द रेट ऑफ 10%. इसका 10% लेंगे 45,000 इंटू 10% ऑफ द टर्न ओवर 100. 4500 ये हो गया डाउन पेमेंट, ठीक है. एंड रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है? 45,000 माइनस 4500, ठीक है. ये कैलकुलेट करते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी है. 45,000 माइनस 4500 इट कम्स 4055. 45,000 माइनस 4500 40500. 40 प्राइस थी 45,000, डाउन पेमेंट की उसने 10% जो कि बन गई 4500. तो प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस कर दी, रिमेनिंग अमाउंट आ गई 40500, ठीक है. रिमेनिंग अमाउंट ऑन सिंपल मार्कअप ऑफ 15% पर ईयर. अब ये जो है ना अमाउंट, इस पे लगेगा मार्कअप, ठीक है. रेट कितना है? रेट इज गिवन 15% पर ईयर फॉर 2 years. टाइम है 2 साल का. और मंथली इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है. मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी और टोटल अमाउंट कितनी पे होगी, ठीक है. तो मंथली जो है हमने इंस्टॉलमेंट पे चेक करनी है, ठीक है. तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो प्राइस थी उसके ऊपर उसने 10% डाउन पेमेंट पे कर दी, ठीक है. फिर रिमेनिंग अमाउंट आ गई इसके पास 40500. अब इसके ऊपर वो मार्कअप पे करेगा. हम इसमें मार्कअप निकालेंगे, मार्कअप की अमाउंट कितनी है, ठीक है. तो जो मार्कअप की अमाउंट है और ये वाली और प्लस मार्कअप, इन दोनों को ऐड करके तो हम उसको 24 पे डिवाइड कर देंगे. 2 years की इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो ये कितने मंथ्स की हैं? 24 मंथ्स, यानी 24 इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है. तो अब हम मार्कअप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि ये है P इंटू आर इंटू टी. उसने इस पे जरा मार्कअप देना है 40500 पे. रेट कितना है? 15% और टाइम कितना है? 2 years, ठीक है. तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें मिल जाएगा मार्कअप 40500 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100. सो 12150. उसने 12150 इतना उसने मार्कअप पे करना है. ये हो गया मार्कअप, ठीक है. तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? अब मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो ऐसे बनेगी कि उसने ये पे करना है, प्लस उसने 12150 ये पे करना है जो मार्कअप है. इसको जो है ना हमने 24 पे डिवाइड कर देना है. तो अब हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है. इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है? 40500 प्लस 12150 डिवाइड बाई 24. वो पे करेगा 2193.75. 21, ठीक है. इतनी इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा. अब हमें सेकंड पार्ट है टोटल अमाउंट पे उसने कितनी करनी है. टोटल अमाउंट पेड, इसमें उसने 24 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है 2193.75 की, और प्लस उसने डाउन पेमेंट पे की थी 4500, ठीक है. तो ये हो जाएगा 2193.75 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 4500. इट बिकम्स 57150. 57150 ये जो है वो उसने
टोटल अमाउंट जो है वो पे करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी रिकैप करेंगे। इसका हम आंसर कंफर्म कर लें 2193.75 और 57150, ये आंसर ठीक है। अब हमने ये देखना है, आपको समझाना क्या है कि एक एसी लिया, उसकी प्राइस इतनी थी, ठीक है। आपने शुरू में ही 10% डाउन पेमेंट कर दी, इसका 10% ले लिया 4500, ये आपने पे कर दिया, इस पर मार्कअप नहीं लगना, ये आपने पे कर दिया। तो क्या करना है कि ये प्राइस है, इसमें से हम डाउन पेमेंट माइनस करेंगे, तो बाकी जो 40500 इसमें आपको मार्कअप पे करना है, ठीक है। ये आपकी समझ लो प्रिंसिपल अमाउंट बन गई जिस पे मार्कअप पे करना है। ये रेट है 15%, टाइम है 2 years, तो हमने मार्कअप का फार्मूला लगाया PRT, ठीक है। 12150 आ गया। अब आपने मार्कअप पे करना है 12150, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का कैसे पता चलेगा, एक आपने ये अमाउंट वाले 40500, ये जो प्रिंसिपल ये लोअर अमाउंट है, ये पे करनी है, साथ मार्कअप पे करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 24 मंथ से 24 पे डिवाइड कर देंगे, तो पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 2193.75, ये आ गई आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका सेकंड पार्ट था टोटल अमाउंट पेड, उसने टोटल अमाउंट कितनी पे की, जब उसने वो एसी यूज़ किया और सारा ये प्रोसेस चला, तो कितनी अमाउंट उसने पे की। तो उसमें उसने दो चीज़ें पे की, एक उसने डाउन पेमेंट पे की और दूसरा उसने जो है ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है ये इसने 24 पे की, ठीक है। 24 इंस्टॉलमेंट्स पे की और साथ उसने डाउन पेमेंट पे की, ठीक है, एक्चुअल जो कंपनी को। तो यही हमने किया कि 24 को मंथली इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया 4500, तो 57150 आ गया, ये अमाउंट थी जो कि उसने पे की, ठीक है। अभी हम करेंगे, ट्राई करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 4.5 का, जो कि है नंबर 11। So we will be trying it and we'll be doing it slowly and logically. A bank gets a piece of land on lease for 5 years. Time दिया हुआ है 5 years. According to the agreement, the bank paid, उसने जो डाउन पेमेंट दी वो दी गई है, ये है 1.2 million, 1.2 million डाउन पेमेंट पे की। According to the agreement, the bank paid 1.2 million as down payment and shall pay 18,000 per month as rent. जो रेंट जो है वो है how much, 18,000 पर मंथ, ठीक है। लीज पे ज़मीन ली, ठीक है, 5 साल के लिए डाउन पेमेंट पे कर दी 1.2 मिलियन और हर महीने जो है वो 18,000 जो है वो पे करना है रेंट। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद द बैंक शैल इंक्रीज द रेंट बाय 3%, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड उसमें इंक्रीज आ जाएगी, रेंट क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा 3%, ठीक है। ये हो जाएगा 18,000 इंटू 3%, ठीक है। 540 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18540, ठीक है। ये हो जाएगा आफ्टर 3 years ये रेंट हो जाएगा, ठीक है। फाइंड टोटल अमाउंट द ओनर वुड गेट, ठीक है। ओनर को क्या मिलेगी टोटल अमाउंट, अच्छा इसमें सबसे पहली चीज उसको मिलेगी डाउन पेमेंट, फिर उसको जो है 5 साल का एग्रीमेंट है, तो 2 साल तक उसको आफ्टर 3 years द बैंक शैल इंक्रीज द रेंट आफ्टर 3 years, तो 3 साल तक उसको जो है वो मिलना है। 3 years के लिए जो रेंट है 3 years यानी 30, ये जो है पर मंथ है 36 इंस्टॉलमेंट्स हो जाए, 36 रेंट्स हो जाएंगे 18,000 के हिसाब से। फिर जो 2 साल बाकी रह जाएंगे उस पर रेंट इंक्रीज हो गया था, तो वो गया था 18540,
18540। तो ये पैसे जो है ना उसको मिलेंगे, ठीक है। डाउन पेमेंट कितनी है? 1.2 मिलियन प्लस 36 इंटू 18,000, 648,000 ये आ गया, प्लस ये वाला 24 इंटू 1850, 444,960। तो इन तीनों को ऐड करते हैं, सो विल बी गेटिंग 1.2 मिलियन प्लस 648,000 प्लस 444,960, इट बिकम्स 22,92,690, 22,92,690। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.5, ठीक है। तो 22,92,960, 22,92,960। तो ये इस तरह से हम इसको देखते हैं, थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन आ रही है। ये यहाँ पे हमने गलती की होगी, 18,000 जो रेंट है इसको इंक्रीज़ करना है बाय 3%, 18,540 आ गया, ठीक है। तो उसमें डाउन पेमेंट जो है 1.2 मिलियन है, ठीक है। और उसके बाद 36 जो रेंट्स हैं वो 18,000 के हिसाब से है, यह आ गया 648,000। फिर 18,540 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, ये आ गया 444,960। अच्छा सॉरी, ये 960 था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 960, तो ये हमने एक जो है वो कर दी मिस्टेक, ठीक है। तो इस तरह से हम दोबारा रिकैप करते हैं। 5 इयर्स के लिए ज़मीन ली गई, उसके लिए 1.2 मिलियन जो है वो डाउन पेमेंट दी गई। फर्स्ट रेंट जो शुरू में रेंट जो माहिदा हुआ 18,000 रुपया महीने का देना था 3 साल तक, ठीक है। 3 साल के बाद वो इंक्रीज़ हो गया 3%। तो हमने क्या किया कि जो पहले 3 साल हैं 36 महीने हमने 18,000 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर आखिरी जो 2 साल थे उसमें 3% इंक्रीज़ हो गया, हमने 18,000 को 3% इंक्रीज़ कर दिया, तो हो गया 18,540, ठीक है। तो इस तरह से जो 24 महीने का था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 18,540 से। तो जो टोटल पेमेंट जो गई बैंक की तरफ से ओनर को डाउन पेमेंट थी, फिर उसके बाद 36 इंस्टॉलमेंट्स थी 18,000 के हिसाब से, और 24 इंस्टॉलमेंट्स थी 18,540 के हिसाब से। तो आंसर आ गया 22,92,960।